Hey, welcome back, guys. This is Saket. In this video, we're gonna learn HTML. So this video is level 1, and we're gonna cover the basics of our HTML. Okay, I'm gonna walk you through what is internet and how internet works. Okay, so internet is the interconnected network of computers around the world. We also call the internet is the connection of thousands of billions or millions computers. Okay, another world we say another word we say the internet is the connection of sorry in another world. Oh fuck. In another word, we say the internet is the network of networks. That means here we see this is our node 1, this is our node 2, this is our node 3, this is our node 4. So what is node? Node is the basically the device. Okay, so this is our mobile phone, this is also mobile phone, this is laptop. So device is anything. Also our refrigerator, our television, our smart washing machine. Here we see our server. So what is server? If any system are run 24 into 7 online and give response to the client based on their request. Another word we say the server is the basically the software, the hardware that serve response, that gives response based on user, based on client request. Okay, now we're gonna see how internet works. Okay, here we see our client, this is our ISP, this is DNS. So what is client? Client is basically the user. Okay, and ISP means internet service provider. ISP means internet service provider that provide internet to us. Okay, and DNS is domain name system. So DNS maintain the table of the domain and their IP address. Okay, so when client search google.com or anything in their browser, so the requests are sent in to our ISP is basically our Jio, Airtel, BSNL and any internet service provider. Okay, so our requests are sent to ISP and ISP send our request to DNS. So DNS match the table and give the IP address of the our request. Here our request is google.com. So ISP send our request and DNS give the IP address of the google.com, and the response are get by ISP and ISP give the response IP address to the client and client connect with the google.com. ओके, सो बेसिकली जब हमारा क्लाइंट कुछ सर्च करता है अपने ब्राउज़र में, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया google.com सर्च किया, तो वो जो सर्च है, वो जो रिक्वेस्ट है वो जाता है ISP के पास. ISP बेसिकली होता है कंपनीज जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हैं, और ISP फिर रिक्वेस्ट भेजता है हमारे DNS के पास. DNS के पास जब रिक्वेस्ट आ जाता है तो DNS अपना मैच करता है रिक्वेस्ट को, और जो IP एड्रेस मिलता है उसे वो हमें रिस्पांस दे देता है. DNS का रिस्पांस हमारे ISP के पास आता है, और ISP फिर हमें रिस्पांस दे देता है IP एड्रेस जो हम सर्च किए रहते हैं. ओके, यहाँ पे हमने google.com सर्च किया है तो हमारा IP एड्रेस google.com का हमारे क्लाइंट को मिल गया है. अब क्लाइंट का जो क्लाइंट को मिला है IP एड्रेस, वो उससे वो कनेक्ट हो जाएगा. ओके, यहाँ पे हमारा क्लाइंट google.com से कनेक्ट हो गया है. सो व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट होता है हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड का कॉम्बिनेशन. फ्रंट एंड क्या होता है? जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है. ओके,
और फ्रंट एंड हम बनाते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट एंड मेनी मोर। इन सभी का यूज करके हम अपना फ्रंट एंड तैयार करते हैं। फ्रंट एंड जैसे हमारा हो गया वेब पेज, उस पर हमारा बटन होगा। अब जब हम बटन को क्लिक कर रहे हैं, जैसे हम अपना एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कुछ डाउनलोड करने के लिए, तो हमारा वो बैक एंड पार्ट हैंडल करता है। सो जब हम किसी, जैसे हम गए अपना VS कोड डाउनलोड करने, अब जब हम बटन पे क्लिक करेंगे VS कोड डाउनलोड करने के लिए, तो हमारी रिक्वेस्ट जो होगी वो बैक एंड के पास जाएगी और बैक एंड रिस्पॉन्स के तौर पे हमें एक फ़ाइल दे देगी और वो फाइल हमारी डाउनलोड हो जाएगी। ओके, सो बैकएंड में क्या होता है, वो बैकएंड में हमारा सर्वर होता है और हमारा डेटाबेस होता है। सर्वर क्या होता है, सर्वर मीन्स जो हमें हमारे रिक्वेस्ट के आधार पे हमें कुछ सर्व करता है। ओके, सो सर्वर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम अपना सर्वर बनाते हैं। यहाँ पे सर्वर हम PHP का यूज करके, पाइथन का, जावा का या जावास्क्रिप्ट और भी बहुत लैंग्वेजेस हैं उसका यूज करके हम अपना सर्वर बना सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं अपना डेटाबेस। डेटाबेस जो होता है वो यूज़ होता है हमारे यूज़र की, हमारे प्रोडक्ट का जो डेटा होता है उसे सेव करने के लिए। ओके, जैसे मान लीजिए हमारा एक वेब पेज है जहाँ पे यूज़र हमारा रजिस्टर करते हैं। अब जब हमारा यूज़र रजिस्टर करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट आएगी हमारे सर्वर के पास। सर्वर देखेगा कि सब कुछ सही है ना, जैसे वो ईमेल आईडी अपना सही दिया है, नेम सही है, तो वो जब अब सर्वर जो वो चेक करेगा फंक्शन, वो देखेगा कि सब कुछ सही है ना। जब सब कुछ सही रहेगा तब हमारा यूज़र का डेटा जो है वो सेव करा देगा डेटाबेस में। फिर जब यूज़र आएगा लॉगिन करने के लिए, फिर यूज़र जब पासवर्ड और अपना ईमेल आईडी जब देगा हमें, फिर जो सर्वर होगा वो चेक करेगा, डेटाबेस से डेटा को फेच करेगा और चेक करेगा कि हमारा यूज़र पहले से एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। अगर पहले से एग्जिस्ट करेगा तो हमारे यूज़र का लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, अगर अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारा लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, सो जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर, सो बैक एंड क्या होता है, उस रिक्वेस्ट के आधार पे हमें रिस्पॉन्स करता है। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि जैसे हम कुछ ब्राउज़र में सर्च किए हैं, यहाँ पे हम मान लीजिए एक amazon.in सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा रिक्वेस्ट जो है वो जाएगा पहले अमेज़ॉन के सर्वर के पास। अब अमेज़ॉन का सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स के तौर पे हमें 3 फाइलें देंगे। ओके, सो पहली फ़ाइल हमारी होगी HTML की, जो हमारी स्ट्रक्चर होगी हमारे वेब पेज की। दूसरी होगी CSS फाइल जो हमारी स्टाइलिंग होगी वेब पेज की। और थर्ड इज़ आवर जावास्क्रिप्ट जो हमारी फंक्शनैलिटी डिफाइन करेगी। ओके, अब हमारा ब्राउज़र जो होगा वो इन तीनों फाइलों को मर्ज करके हमारा वेब पेज को हमारे ब्राउज़र पे शो कराएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मिल जाएगी फाइल और हमारा रिस्पॉन्स amazon.in का वेब पेज हमें कुछ ऐसा शो होके दिखेगा। ओके, अब हम देखते हैं अपना HTML। ओके, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दैट मीन्स HTML का यूज़ होता है हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। ओके, वी यूज HTML टू provide structure of our website, and the extension of our HTML is .html. That means we write .html and file name. Okay, so file name .html means our file name and .html is our extension. Okay, we save any HTML file with .html extension. Okay, now we're gonna see our HTML element. ओके, तो HTML एलिमेंट जो होता है हमारा स्टैंडर्ड एलिमेंट दैट ब्राउज़र रिकग्नाइज। ओके, सो एक स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है जिसे ब्राउज़र पहचानता है, उसे देखते ही ब्राउज़र समझ जाता है कि हमें अब क्या डिस्प्ले कराना है। ओके, लाइक आवर पैराग्राफ, आवर हेडिंग, आवर इमेज एंड मेनी मोर। ओके, नाउ वी गोना सी HTML टैग। ओके, सो HTML टैग क्या होता है? HTML टैग द component used to design the structure of website are called HTML tag. That means the component are used to provide the structure, provide the design of our website.
It's called tag. Okay. The tag is a container of some content or other tag. That means inside the tag we write our content or another tag. When we write the tag inside tag is called nesting or nested tag. Okay. A container for some content or other tag. Now we gonna write our first HTML code or hello world in HTML. Okay, now I gonna walk you through our desktop. Make a new folder that name HTML. Okay, you can give anything the name of our folder, and then we click shift plus right mouse click. Okay, here we see the option of open with VS Code. Okay, here we see the file explorer. यहाँ पे हम अपनी फाइल को देख सकते हैं. ओके, ये जो हमारा आइकन है वो यूज़ होता है जो एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के लिए. आप दो एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं. पहला है लाइव सर्वर जो हमारी लाइव वेबसाइट को वेब पेज को देखने के लिए काम आएगी, और दूसरा प्रीटियर जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में काम आएगी. ओके, अब हम जाते हैं अपना नई फाइल बनाते हैं. ये जो आइकन है इससे हम अपनी न्यू फाइल बना सकते हैं. इस आइकन से हम अपना न्यू फोल्डर बना सकते हैं. ओके, हमें क्या है न्यू फाइल बनाना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और लिखेंगे इंडेक्स जो होता है हमारी फाइल HTML फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम होता है, और .html लास्ट में लगाएंगे जो हमारा HTML फाइल का एक्सटेंशन है. अब हम एंटर प्रेस करेंगे. ओके, अब हम बॉयलर प्लेट अपना लिखने के लिए, अपने बॉयलर प्लेट लिखवाने के लिए VS कोड में हम क्लिक करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क हम लिखेंगे और एंटर कर देंगे. अगर आप में ये बॉयलर प्लेट नहीं बन रहा है तो डरने की कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं. ओके, अब हम देखेंगे अपना पहला HTML प्रोग्राम, अपना पहला HTML कोड. हम अपना P टैग लिखेंगे जो कि पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है. इनसाइड द P टैग वी राइट और हेलो वर्ल्ड. वी सेव इट, Ctrl+S, राइट क्लिक, एंड here is the option open with live server. जो एक्सटेंशन हमने डाउनलोड किया है लाइव सर्वर, उससे हम अपने फाइल को लाइव यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, यहाँ पे हमारी फाइल खुल गई है और हेलो वर्ल्ड जो है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम वो लिख के आ गया है. ओके, अब हम देखेंगे अपना जो बॉयलर प्लेट है, अब उसे हम समझेंगे HTML के कोड को. ये जो है हमारा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. ओके, इसे हम हटा देते हैं. अब ये जो है ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ओके, अब ये जो है डॉक टाइप HTML, ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हम लेटेस्ट HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं. ओके, अब हम देखते हैं अपना HTML टैग. HTML टैग जो है वो होता है हमारा रूट टैग होता है. ओके, इसके अंदर हमें दो सब टैग मिलेंगे. पहला है हेड टैग और दूसरा है बॉडी टैग. इनसाइड हेड टैग वी राइट और मेटा डेटा. मेटा डेटा इज द डेटा अबाउट डेटा. ओके, एंड इनसाइड our body tag we write our actual code which are show on our web page. ओके, सो P जो हमारा बॉडी टैग है उसके अंदर जो हम कोड लिखते हैं वो हमारे ब्राउज़र पे हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होता है. ठीक है, अब जो है ये हेड टैग और बॉडी टैग जो है वो आपस में सिबलिंग है. ओके, और जो ये HTML टैग है ये हमारा पेरेंट है. जो हेड टैग और बॉडी टैग का पेरेंट है HTML. ओके, अब जो मेटा है और ये भी मेटा है, ये टाइटल है, इसका ग्रैंड पेरेंट हमारा HTML. ऑलराइट, अब हम देखने वाले हैं अपना टैग के बारे में. टैग अ कंटेनर ऑफ सम कंटेंट और अदर टैग. ओके, यहाँ पे हम देखते हैं अपना फर्स्ट बेसिक टैग जो है हमारा H1 to H6 एंड पैराग्राफ टैग, BR टैग, HR टैग. H1 to H6 जो है ये हमारा है हेडिंग टैग. ओके, ये 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड लास्ट वन इज H6. P tag is our paragraph tag. BR means लाइन ब्रेक, न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है. HR means हॉरिजेंटल, जो हमारा लाइन लाता है, हॉरिजेंटल रूरल कहते हैं इसे. ऐसे ही हमारा विड्थ के अकॉर्डिंग पूरे विड्थ में एक
हॉरिजेंटल लाइन आ जाता है इससे, HR टैग से। ओके, अब देखते हैं अपना टैग। ओके, सो एक चीज़ हम लिखने वाले हैं, अपना देखने वाले हैं कमेंट क्या होता है। कमेंट हम VS कोड में कंट्रोल और स्लैश जब प्रेस करेंगे तो कमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। दिस इज आवर स्टार्टिंग ऑफ कमेंट एंड दिस इज द एंड ऑफ कमेंट इनसाइड दी। तो कमेंट जो होता है HTML वो स्टार्ट होता है लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड हाइफन हाइफन, फिर हाइफन हाइफन और ग्रेटर देन। ओके, सो इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा ब्राउज़र रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मीन्स कमेंट जो होता है हमारा कोड का पार्ट होता है, जो यूज होता है हमें कोड को अपने समझने के लिए, दूसरे डेवलपर को कोड हमारे कोड को समझने के लिए, और इसे ब्राउज़र, इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर नहीं रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम लिख रहे हैं हेडिंग। ओके, अब हम अपना लिखते हैं H1 टैग, H1 हेडिंग 1। अब इसे सेव करते हैं। अब फिर से देखते हैं अपने, या फिर आप ऐसे भी खोल सकते हैं अपने ब्राउज़र को। अब देखिए हमारा लाइव जो भी हमारा चेंजेस होगा यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट होगा। ओके, हम H1 टैग लिखे हैं और सेव करें तो हमारा यहाँ पे H1 टैग आ गया है। अब हम अपना H2 टैग लिखते हैं। आप ऐसे भी H2 लिखकर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लोज और ओपन और क्लोज हो जाएगा टैग। ये जो है ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये जो है ये हमारा क्लोजिंग टैग है। इनसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग वी राइट आवर कंटेंट और अदर टैग। ओके, सो इनसाइड H2 टैग वी राइट हेडिंग 2 एंड ऐसे ही हम अपने H6 तक लिख लेते हैं। कंट्रोल D कर लेते हैं, इससे क्या होगा 3 कंट्रोल D से हमारा जो होता है कर्सर वो डुप्लीकेट होता है। ओके, H5 कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, और H6 कर लेते हैं। अब फॉर्मेट करने के लिए हम Alt Shift और F प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट हो जाएगा, और यहाँ पे हम जब सेव करेंगे तो हमारा चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। H1 जो है वो सबसे बड़ा दिख रहा है और H6 सबसे छोटा दिख रहा है। मीन्स जो H1 टैग होता है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा हेडिंग होता है उसे शो करने के लिए हम H1 का यूज करते हैं, उससे लेस इम्पॉर्टेंट के लिए H2, उससे भी कम इम्पॉर्टेंट के लिए H3 एंड ऐसे ही हम H6 तक यूज करते हैं। हमें ध्यान देना है कि हम हेडिंग टैग का यूज अपनी फ़ॉन्ट की साइज़ के लिए नहीं यूज करेंगे। ओके, हम अपने टेक्स्ट के, अपने हेडिंग के इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है उसके हिसाब से अपने हेडिंग टैग को यूज करेंगे। ओके, सो द H1 to H6 HTML element represent 6 level of सेक्शन हेडिंग्स। ओके, H1 जो है हमारा वो हाईएस्ट सेक्शन लेवल है। ओके, और H6 जो है वो लोवेस्ट सेक्शन लेवल है। मीन्स वही जो मैंने बताया प्रायोरिटी उसकी जो है वो हाई है इसकी, और H6 की लो है। ओके, अब हम देखने वाले अपना पैराग्राफ टैग। फिर हम अपना वही कंट्रोल स्लैश करेंगे तो हमारा कमेंट आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ के लिए हम ओपनिंग टैग में P लिखते हैं और जैसे हम इसे क्लोज करेंगे ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ टैग है। इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज़ आवर फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसे सेव करते हैं तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ आ गया लिख के। ओके, सो इसके अंदर कितना भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट, मान लीजिए 25 वर्ड लिखना है। ठीक है, अब इसके लिए हम लिख सकते हैं लॉरेम 25। ओके, लॉरेम का यूज होता है रैंडम वर्ड को लिखने के लिए। अब सेव करेंगे तो हम 25 हमारा वर्ड आ गया है। ओके, अब मान लीजिए हमारा जो लिखा है दिस इज़ आवर फर्स्ट पैराग्राफ, इसके बाद हमें जो लॉरेम है ये इतना कंटेंट नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपना BR टैग, BR मीन्स लाइन ब्रेक। अब सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है दिस इज़ आवर फर्स्ट पैराग्राफ, ये नई दूसरी लाइन में आया है, और उसके बाद जो भी कंटेंट है वो हमारी नेक्स्ट लाइन में आया है। ओके, सो ये हुआ है हमारे BR टैग के कारण हुआ है। ओके,
हम एक और br टैग यूज कर सकते हैं। अब सेव करेंगे तो हमारे एक लाइन का गैप आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमें एक हॉरिजेंटल लाइन देना है यहाँ पे पूरा, ठीक है, ऐसे ही हॉरिजेंटली लाइन देना है, तो हम इसके लिए हम यूज करेंगे अपना hr टैग, ओके। अब सेव करेंगे जब, तो यहाँ पे देखिए हमारा हॉरिजेंटल लाइन आ गया है। देखिए ये हमारा पूरे विड्थ के अकॉर्डिंग पूरे स्क्रीन साइज में हमारा आ गया है हॉरिजेंटल टैग। अब हम देखने वाले हैं अपना बेसिक टैग हमारा हो गया है। अब हम देखने वाले हैं अपना टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बी टैग है, आई टैग, यू टैग मीन्स बोल्ड टैग, ये है हमारा इटैलिक टैग है, ये हमारा अंडरलाइन टैग है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है, ये हमारा एम टैग है, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट है, ये हमारा सब स्क्रिप्ट है। हम एक एक करके सबको देखने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग को, ओके। हम अपने VS कोड में आ जाते हैं। अब हम फिर से अपना वही कमेंट लिखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब हम लिखने वाले हैं अपना पैराग्राफ एक लिख रहे हैं और लिख दे रहे हैं हाय माय नेम इज साकेत। तो अब हम लिख दे रहे हैं हाय माय नेम इज साकेत। तो इससे क्या होगा, हम जब सेव कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारा प्रिंट हो गया। अब हम चाहते हैं अपने नाम को एक बोल्ड करना, मीन्स हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, इसे हम कट कर रहे हैं और बी टैग लिख के इसके अंदर हम जब लिख दे रहे हैं अपना साकेत, तो यहाँ पे देखिए हमारा बोल्ड हो गया है टेक्स्ट, ओके। तो टेक्स्ट को किसी भी बोल्ड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं अपना बोल्ड टैग, ओके। और फिर हम लिख रहे हैं हाय यूट्यूब, ओके। अब हम चाह रहे हैं जो यूट्यूब लिखा है इसकी स्टाइल हो जाए इटैलिक, तो इसके लिए हम करेंगे आई मीन्स इटैलिक, इसके अंदर हम अपना यूट्यूब रख देंगे। अब इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ये टिल्ट हो गया है, ओके। सो हाय जो है वो सीधा है और जो यूट्यूब है वो हल्का सा टिल्ट हो गया है। सो आई टैग मीन्स इटैलिक टैग का यूज होता है हमारे टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल देने के लिए, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना अंडरलाइन टैग मीन्स ईमेल हो गया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं hello@gmail.com, hello@gmail.com। अब इसे हम सेव कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं जो hello@gmail.com है ये अंडरलाइन में आए, ओके। तो इसके लिए हम कर रहे हैं, इसे हम कट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना यू टैग लिख सकते हैं मीन्स अंडरलाइन टैग, इसके अंदर हम अपना ईमेल आईडी पेस्ट कर सकते हैं। अब इसे जब सेव करेंगे हम देखिए यहाँ पे हमारा जो ईमेल आईडी है वो अंडरलाइन होकर आ गया है, ओके। सो बोल्ड टैग का यूज़ होता है हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक टैग का यूज़ होता है हमारी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, और अंडरलाइन का यूज़ होता है हमारी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। अब हम देखने वाले हैं अपना एम टैग, ओके। रोल लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब हम चाहते हैं हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो थोड़ा सा टिल्टेड आए, ओके। यहाँ पे हम अपना एम टैग लिखेंगे और इसके अंदर हम पेस्ट कर दे रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो टिल्टेड हो गया है, ठीक है। सो जो हमारा बोल्ड जो हमारा इटैलिक टैग है वो सिर्फ टिल्ट करता है, लेकिन जो हमारा एम टैग है ये टिल्ट करता है और इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा ये हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अपना सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग, ओके। सो यहाँ पे हम अपना लिख रहे हैं तो हम अपना H2 बना लेते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं वाटर। अब हम चाहते हैं अपना वाटर का फार्मूला हम लिखें, ओके। तो वाटर का फार्मूला जो होता है वो H2O होता है, तो हम लिख रहे हैं H2NO। अब सेव करते हैं इसे तो हमारा H2O लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं जो हमारा 2 है वो थोड़ा सा हमारे बेस में आए, यहाँ पे आए हमारे H के बेस में आए, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपना सब स्क्रिप्ट टैग, ओके। तो हम लिखते हैं सब स्क्रिप्ट टैग और इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं 2। अब जब हम सेव करेंगे तो हमारा जो 2 है वो बेस में लिख के आएगा। अब इससे वो देखने में और रीडेबल है ये थोड़ा, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट टैग का यूज़ होता है जैसे हमारे
केमिस्ट्री के फार्मूलाज लिखने में और भी बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अपना कमेंट। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अपना सुपरस्क्रिप्ट टैग। तो फिर से हम अपना S2 बनाते हैं। मान लीजिए हमें लिखना है a + b का होल स्क्वायर, ओके। अब हम इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो बगल में लिख गया है पैरेंथेसिस के, लेकिन हम चाहते हैं ये स्क्वायर ऊपर लिखा है, यहाँ पे आ जाए, थोड़ा यहाँ पे आए, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपना सुपरस्क्रिप्ट टैग, ओके। तो जो 2 है उसे हम अपने सुपरस्क्रिप्ट टैग में रख देते हैं। अब जब 2 लिखेंगे और सेव करेंगे तो इससे क्या होगा, जो स्क्वायर है, जो 2 है वो अब स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ होता है लाइक स्क्वायर, क्यूब, ऐसे नंबर्स को प्रिंट करने के लिए, ओके। सो सबस्क्रिप्ट टैग जो भी हम लिखेंगे वो जो हमारा मेन वर्ड है उससे थोड़ा सा नीचे लिख कर आएगा, और जो सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे वो थोड़ा सा नीचे ऊपर लिख कर आएगा, ओके। सो अब हम देखने वाले हैं अपना, अब हमारा बेसिक टैग हो गया है और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं अपना लिंक्स एंड एंकर्स, ओके। दैट मीन्स वी गो टू सी आवर एंकर टैग्स, ओके। टाइप कर ले रहे हैं, यहाँ पे हमारी हेडिंग आ गई। हम चाहें तो ऊपर एक HR दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपना एंकर टैग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंकर टैग क्या होता है, जैसे हम बहुत जगह देखते हैं, बहुत वेबसाइट पे देखते हैं, वो कुछ टेक्स्ट होते हैं जो क्लिकेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे है ये hello@gmail.com, इस पर हम जब क्लिक करें तो हम किसी नई साइट पे खुले या फिर किसी नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो इसके लिए हम अपने एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग होता है तो ये है हमारा एक एंकर टैग, ओके। इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसका नाम है href। इसे लिखने के लिए हम लिखेंगे href = एंड हमारा डबल कोट्स, ओके। अब इसके अंदर हम अपना लोकेशन, जो हमारा फाइल का जो हमारा लिंक होगा उसे हम अपना पेस्ट कर देंगे। href का मतलब है हाइपर रेफरेंस, ओके। सो इसके अंदर हम लिख दे रहे हैं गूगल। अब सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इस पर क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा है। हम क्या चाहते हैं, इस पर क्लिक करें तो हम google.com वाली पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएं, ओके। इसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे href मीन्स हाइपर रेफरेंस = एंड डबल कोट्स। इसके अंदर हम अपना लोकेशन देंगे जो है हमारा www. या फिर हम लिख सकते हैं https://www.google.com। अब हम इसे सेव करते हैं। अब जब हम इस पर google.com पे क्लिक करेंगे तो हम google.com पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। हमारा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, ओके। सो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने google.com है तो उस पर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब फिर से हम अपने index.html में आ जाते हैं। अब जब हम इस पर google.com पे क्लिक करेंगे तो google.com जो हमारी वेब पेज है उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करें तो हम सेम पेज पे ही हमारा जो लिंक है वो खुल जा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। उसका नाम है टारगेट = एंड हम लिखेंगे इसकी वैल्यू _blank। इसका मतलब है अब जब भी हमारा वेब पेज खुलेगा, जो हमारा लिंक खुलेगा वो एक नई पेज में खुलेगा। अब जब हम इसे सेव कर ले रहे हैं, अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे google.com जो हमारा एंकर टैग, जो हमारा हाइपर रेफरेंस है, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे देखिए नए टैब में हमारा खुला है लिंक, ओके। अब हम देखने वाले हैं अपना इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लिंक, ओके। सो यहाँ पे जो हम दिए हैं www.google.com जो हम ये दिए हैं लिंक, ये हमारी है एक्सटर्नल लिंक। दैट मीन्स ऐसा लिंक जो कहीं दूसरे, कहीं क्लाउड पे, कहीं सर्वर, दूसरा कोई भी वेब पेज हो जो हमारे लोकल सिस्टम में ना हो, जो कहीं क्लाउड से ओपन हो, कहीं इंटरनेट से वो खुले, ओके। तो ऐसे लिंक को हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक, जो बाहर की लिंक है। अब हम एक और लिंक हम बना सकते हैं अपना। मान लीजिए हम एक नया वेब पेज अपना बनाते हैं
home.html। ओके, इसके अंदर हम लिख देते हैं होम का कोड। अब होम पेज इसका टाइटल रख देते हैं और इसके अंदर बेसिक हम h1 लिखते हैं, होम लिख देते हैं बस। ओके, अब इसे सेव कर लेते हैं। अब एक और हम अपना हाइपर लिंक बना रहे हैं, अपना हाइपर रेफरेंस बना रहे हैं। ओके, अब इस पे हम लिख दे रहे हैं होम। ओके, इसे सेव कर रहे हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम सेम पेज पे ही रह जा रहे हैं। ओके, देखिए जब हम इस पर क्लिक करें सेम पेज पे ही रह जा रहे हैं। अब हम चाहते हैं जब हम इस पर क्लिक करें तो हम अपनी होम वाली पेज को ओपन कर ले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ./home.html। इसका मतलब ./ मीन्स उसी वर्किंग डायरेक्टरी में है, तो इसके लिए हम लिखते हैं ./home.html। अब ये जो है www.google.com, ये जो एड्रेस है हमारा, ये एक्सटर्नल एड्रेस है, मीन्स एक्सटर्नल लिंक है। और जो ये ./home.html है ये हमारा इंटरनल है। ओके, ये हमारा इंटरनल लिंक है। अब जब हम इसे सेव करते हैं, अब जब होम पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपने देखिए यहाँ पे home.html पेज पे आ गए हैं। और इसके अंदर का कंटेंट क्या है, एक h1 टैग है और उसके अंदर हम लिखे हैं होम। ओके, अब फिर से हम पीछे जाते हैं इंडेक्स पे। अब जब गूगल पे हम क्लिक करेंगे तो नई पेज खुलेगी google.com की, जो हमारे एक्सटर्नल लिंक है और ये हमारी इंटरनल लिंक है। अब चाहते हैं हम इंटरनल लिंक को भी एक नए पेज में खोलें, एक नए टैब में खोलें, तो इसके लिए हम कर देंगे target_blank। अब सेव करेंगे, फिर जब अपना इसे होम को खोलेंगे तो एक नई पेज में खुलेगी। ओके, इसका टाइटल हमने दिया है होम पेज, तो ये होम पेज टाइटल यहाँ पे ले लिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं अपना इमेज टैग। ऑलराइट, यहाँ पे हम अपना एक HR दे देते हैं। अब लिखते हैं अपना H2 के अंदर img टैग। ओके, सेव कर लेते हैं इसे। इमेज टैग, ये हमारा, हमने अपना ये एंकर टैग देख लिया, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल देख लिया और टैग टारगेट भी देख लिया। ओके, अब हम अपना इमेज टैग देखते हैं। इमेज टैग बेसिकली होता है वो हमारे किसी इमेज को किसी इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए हमारे वेब पेज पे यूज़ होता है इमेज टैग। ओके, अब इस पे भी हम देखने वाले इमेज टैग क्या है, उसको कैसे हम शो कराते हैं और इमेज की साइज़ कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने कोड पे, पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम अपने इमेज टैग लिखेंगे, इसे क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी क्लोजिंग नहीं आ रही है, क्लोजिंग टैग नहीं आ रहा है, सिर्फ ओपनिंग टैग है। तो ऐसे टैग जिसका क्लोजिंग टैग नहीं आता है उसे हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ओके, जैसे HR टैग हुआ हमारा, BR टैग हुआ हमारा, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सेल्फ क्लोजेस टैग है। ओके, अब इसके अंदर हम एक यहाँ पे इसे हम जब सेव करते हैं तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, इसके अंदर अब हम एक देंगे एट्रीब्यूट SRC मीन्स सोर्स। अब सोर्स हम देंगे, अब इसके अंदर सोर्स देंगे। ओके, हम आ जाते हैं अपने अनस्प्लैश पे। बेसिकली अनस्प्लैश पे हम जाकर एक अपने लिए एक इमेज ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारी इंटरनेट थोड़ी स्लो है तो हम क्या करते हैं, अपना लोकल किसी इमेज को उठा लेते हैं। ओके, सो इसके SRC के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमारा होम इमेज है, इसे लेते हैं। मान लीजिए हम इस इमेज को ले रहे हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। अब हम अपने VS कोड में आते हैं और यहाँ पे फाइल में जाके जब हम यहाँ पे न्यू फाइल करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारी इमेज पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इमेज को हम अपने देख सकते हैं। अब इमेज का जब हम लोकेशन देंगे तो फिर वही जैसे हम इसे दिए हैं वैसे ही इमेज की भी लोकेशन दे सकते हैं। ./ मीन्स सेम वर्किंग डायरेक्टरी में हमारा इमेज है, इसलिए ./ यूज़ करेंगे। और यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है हमें, अब इसे हम क्लिक कर देंगे। अब सेव जब हम इसे करेंगे तो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई। अब हम चाहते हैं इसकी हाइट थोड़ी कम करनी और इसकी विड्थ थोड़ी कम करनी, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक एट्रीब्यूट, उसका नाम है हाइट और इसे हम दे देते हैं 50 पिक्सल। सेव करते हैं, यहाँ पे हमारी हाइट छोटी हो गई है यहाँ पे इमेज की। ओके, और ऐसे ही हमारी विड्थ है
उसे हम दे देते हैं अपना 50 पिक्सल। ओके, सेव करते हैं। अब हमारी हाइट विड्थ सेम हो गई है। मान लीजिए हम इसे 100 पिक्सल दे देते हैं और यहाँ पे अपनी हाइट हम दे देते हैं मान लीजिए 90 पिक्सल। अब जब से इसे सेव करते हैं यहाँ पे हमारी हाइट विड्थ बढ़ गई है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ गलती कर देते हैं अपने लोकेशन में। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा डिफ़ॉल्ट जो आइकन है, ठीक। अब इसके लिए हमें पता नहीं चल रहा है क्या इमेज थी। अब यूज़र को लग सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इमेज होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट लिखते हैं, अल्ट मीन्स अल्टरनेट। यहाँ पे लिख सकते हैं सम या फिर होम इमेज। अब जब इसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे होम इमेज लिख कर आएगा। इससे हमारे यूज़र को पता लग जाएगा ओ यहाँ पे हमारी होम इमेज थी। ओके, यहाँ पे हम अपनी जो लोकेशन है, जो सोर्स है, उसे सही कर देते हैं। अब हमारी मतलब जब हमारा यहाँ पे इमेज नहीं लोड होगा तब हमारा ये अल्टरनेट जो लिखा होगा टेक्स्ट वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब ये हमारा जो सोर्स हो गया वो हो गया इंटरनल सोर्स। ओके, जो हमारे फोल्डर में पहले से ही, जो हमारे लोकल सिस्टम में पहले से ही इमेज है उसका हो गया। अब हम अपना एक एक्सटर्नल सोर्स भी ले लेते हैं। ओके, सो IMG इसे क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर SRC लिखते हैं जो अभी हम देंगे अपना सोर्स। अब अल्टरनेट एक अपना लिख देते हैं होम 2 और इसकी हाइट विड्थ सेम रखते हैं। ओके, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम अपना पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा कुछ लोकेशन, हमारा सोर्स नहीं है कुछ इमेज की, तो यहाँ पे हमारा अल्टरनेट आ गया है, ठीक है। अब हम अपना अनस्प्लैश पे जाते हैं, unsplash.com पे। यहाँ पे हम अपना अनस्प्लैश पे कोई भी इमेज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसे लेते हैं और इसका हम कॉपी एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस या फिर कॉपी लिंक है, ठीक है, कॉपी इमेज लिंक। ओके, अब इस इमेज की लिंक को हम यहाँ पे SRC में पेस्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो लिंक है ये हमारा है एक्सटर्नल लिंक। ओके, एक्सटर्नल सोर्स है ये, और ये है इंटरनल सोर्स। ओके, अब इसे सेव जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा लोड होगा। अभी यहाँ पे हमारा इमेज लोड हो गया है। तो ये जो इमेज है वो हमारा इंटरनल सोर्स से आया है और ये जो है ये एक्सटर्नल सोर्स से आया है। अगर फ्यूचर में अनस्प्लैश इस इमेज को डिलीट कर देता है तो हमारा यहाँ से भी इमेज नहीं रेंडर होगा, मतलब यहाँ पे हमारा इमेज नहीं डिस्प्ले होगा। बट ये जो हमारा इमेज है वो जब तक हमारे लोकल यहाँ पे रहेगा इस फोल्डर में, HTML फोल्डर में, तब तक यहाँ पे डिस्प्ले होगा अगर इसका SRC सोर्स नहीं बदलते हैं। ओके, सो हमने देख लिया है अब तक इंटरनेट क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है, और वेब डेवलपमेंट क्या है और कैसे हमारा सर्वर सर्व करता है कुछ भी हम जब रिक्वेस्ट करते हैं। HTML क्या होता है ये हमने देख लिया। HTML एलिमेंट क्या होता है, HTML टैग क्या होता है, HTML बेसिक टैग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, लिंक एंकर टैग एंड इमेज टैग। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। ओके, थैंक यू।